ગુડ મોર્નિંગ, જય મહાદેવ. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? શ્રી તન્ના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલ દ્વારા જે વિડીયો ટીચિંગની પ્રક્રિયા શરૂ છે તેમાં આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ 7 હાર કી જીત આ એક કહાની છે કે જેમના લેખક છે સુદર્શન બદ્રીનાથ શર્મા, કે જેમણે આ કહાની છે એ કહાની લખેલી છે. આપ જાણો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે આ કહાની છે એ આગળના તાસની અંદર પાઠ્યપુસ્તક દ્વારા સમજી ચૂક્યા છીએ. હવે આજે આપણે આ જ પાઠ છે એને સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખવાનો છે. આ પાઠની અંદર આપણે શું શીખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે આ પાઠની અંદર એક સાધુ, એક ડાકુ, આની આખી કહાની છે. અને સાધુ પાસે એક સરસ મજાનો ઘોડો હોય છે અને એનું નામ હોય છે, સાધુનું નામ હોય છે બાબા ભારતી, અને ઘોડાનું એણે નામ રાખેલું હોય છે સુલતાન. અને જે ડાકુ છે એ ડાકુનું નામ છે ખડકસિંહ. બાબા ભારતી છે એ પોતે ગામથી ખૂબ જ દૂર એક મંદિર આવેલું હતું, ત્યાં રહેતા હતા, ભગવાનના ભજન કીર્તન કરતા, અને બાકીનો સમય જે વધતો એ બધો જ સમય તે ઘોડાને અર્પણ કરતા. અને એ ઘોડાને પોતાના જીવથી વિશેષ તે સાચવતા. અને ઘોડાનું નામ એને શું રાખેલું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે સુલતાન. એને સુલતાન કહી અને બોલાવતા હતા. આ માં તમે જોઈ શકો છો કે બંને વચ્ચે કેટલી ગાઢ લાગણીના સંબંધો હોય છે. અને આ જે કહાની છે એ તમને માનવ ભાવ દર્શાવે છે કે ડાકુ હોય છે એ ડાકુ પેલા સાધુને દગો દઈ અને એની પાસેથી ઘોડો છીનવી અને લઈ જાય છે. તેમ છતાં પણ પેલા સાધુ હોય છે એ એના પ્રત્યે જરા પણ રોષ કે એવું કંઈ રાખતા નથી. આ પાઠ ખૂબ જ સરસ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખવાની શરૂઆત કરીશું. આપ બ્લેક અને બ્લુ પેનનો ઉપયોગ કરી અને આ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આ પાઠ છે એને લખી શકો છો. હવે આપણે જોઈશું પ્રથમ પ્રશ્ન. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें. प्रश्न 1, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ए हरेश ढोलकिया, बी सुदर्शन बद्रीनाथ शर्मा, सी शंकर दयाल शर्मा, के डी प्रेमचंद. આ કહાનીના લેખક કોણ હતા? તો કે સુદર્શન બદ્રીનાથ શર્મા. જવાબમાં આવશે બી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, हार की जीत कहानी खाली जगह पर आधारित है. ए लोककथा, बी पर्यावरण, सी मानव भावना, के डी प्राणी प्रेम. सेना पर आधारित है? तो के सी मानव भावना. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, खाली जगह को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता है. ए माँ, बी बाबा भारती, सी खड़कसिंह, के डी किसान. હવે કોને પોતાના ખેતરનો લહેરાતો પાક જોઈને આનંદ આવે છે? તો કે ડી કિસાન. કિસાન એટલે ખેડૂત. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, सुल्तान की कीर्ति किसके कानों तक पहुंच गई? ए गांव वालों, बी डाकू खड़क सिंह के, सी राजा के डी इनमें से कोई नहीं. सुल्ताननी कीर्ति कोना कानों सुधी पहुंची गई थी? तो के बी डाकू खड़क सिंह. ત્યાર પછી 5મું, बाबा भारती सुल्तान पर चढ़कर रोज खाली जगह मील का चक्कर लगाते थे. ए 1, बी 8, 10, सी 15, के डी 20. કેટલા માઇલ સુધી ચક્કર લગાવતા? તો કે બી 8 થી 10. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 6, खड़क सिंह का नाम सुनकर लोग खाली जगह थे. ए हंसते थे, बी कांपते थे, सी रोते थे, के डी सोते थे. હવે ખડકસિંહ એક ડાકુ હતો.
એનું નામ સાંભળી અને બધા જ લોકો શું કરતા હતા તો કે બી કાંપતે થે એટલે કે ધ્રુજતા હતા, એનાથી ડરતા હતા. 7મું, खड़क सिंह को बाबा भारती के पास कौन खींच लाए? ए सुल्तान की याद, बी भक्ति, सी सुल्तान की चाह કે ડી માનવ સેવા. હવે ખડકસિંહને બાબા ભારતી સુધી શું ખેંચીને લાવ્યું છે તો કે એની અંદર આવશે સી સુલ્તાન કી ચાહ. ત્યાર પછી 8મું, અપાહિજ કો કહા જાના થા? ए रामवाला, बी रामगढ़, सी दुर्गापुर के डी रामपुर. હવે અપાહિજ જે માણસ હતો કે જે રસ્તામાં બાબા ભારતી ઘોડા પર સવાર થઈ અને જતા હતા ત્યારે એને જે માણસ મળ્યો અપાહિજ, એને કયા ગામ જવું હતું? યાદ કરો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? સરસ, વેરી ગુડ. ક્યાં જવું હતું? એ રામવાલા. ત્યાર પછી 9મું, અપાહિજને સ્વયં કો કિસકા सोतेला भाई बताया? ए दुर्गादत्त हलवाई, बी दुर्गादत्त नाई, दुर्गादत्त वेद के इनमें से कोई नहीं. कोने पोतानो सोतेलो भाई दर्शाव्यो एणे तो के सी दुर्गादत्त वेद ने. 10मो प्रश्न, जहाँ घोड़ा भागा जाता है वह जगह यानी अस्तबल, इस जगह को क्या कहते हैं बच्चों? अस्तबल. जवाब में आवशे बी. खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू छे खाली जगह से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता. जवाब में आवशे भगवद भजन. भगवद भजन. ત્યાર પછી બીજું, बाबा भारती अपने घोड़े को खाली जगह कहते हैं. देखो सुल्तान. ત્રીજું, बाबा भारती ने रुपया खाली जगह जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया. माल, माल, असबाब, माल असबाब मकान आदि सब कुछ छोड़ दी. तेने जमीन जायदाद मकान बधुं ज छोड़ी दीधुं. खाली जगह 4, बाबा ने घोड़ा दिखाया. खाली जगह से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा. खाली जगह से शो से विद्यार्थी मित्रों आमा बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से. 5मुं, रात्रि का खाली जगह पहर बीत चुका था. रात्रिनो कयो पहर तो के तीसरा. 6ठी खाली जगह, घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की खाली जगह पहचान लिया. चाप. प्रश्न 3, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए. पहलू, बाबा भारती और खड़क सिंह गौशाला में पहुंचे. वाक्य केवुं थशे विद्यार्थी मित्रों? खोटू. ते बने क्या पहुंच्या था तो के अस्तबल में. बीजू, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया. वाक्य केवुं थशे? साचुं. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न पहलो, बाबा भारती कौन थे? लखो बाबा भारती बाबा भारती भगवद भजन भगवद भजन करने वाले
भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष, एक संत पुरुष थे। बीजू, बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता है? लखो, बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर त्यार पछीनो प्रश्न नंबर 3, बाबा भारती के घोड़े की विशेषता लिखिए। देखो, बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था। तो जैसे हवा में उड़ रहा हो, त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, बाबा भारती को क्या लगने लगा था? देखो, बाबा भारती को लगने लगा था कि वे सुल्तान के बाबा भारती को लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे, प्रश्न नंबर 5, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते हैं? देखो, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि
सुल्तान ऐसे चलता है। सुल्तान सुल्तान ऐसे चलता है। सुल्तान ऐसे चलता है जैसे मोर। जैसे मोर बादल की। जैसे मोर बादल की घटा देखकर। बादल की घटा देखकर नाच रहा हूँ। प्रश्न नंबर 6, बाबा भारती क्यों फूले नहीं समाते? लखो बाबा भारती बाबा भारती कभी घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और वह मन में फूले न समाते। फूले नहीं समाते। प्रश्न नंबर 7, खड़क सिंह कौन था? देखो खड़क सिंह बाबा भारती के इलाके का। खड़क सिंह बाबा भारती के इलाके का डाकू था। बाबा भारती के इलाके का डाकू था। प्रश्न नंबर 8, खड़क सिंह किसे देखने के लिए अधीरा हो गया था? लखो खड़क सिंह बाबा भारती के खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो गया। नवो प्रश्न, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? देखो खड़क सिंह बाबा भारती के पास बाबा भारती के पास आया क्योंकि घोड़े सुल्तान की
की कीर्ति सुनी थी, उसे देखने की इच्छा से वह बाबा भारती के पास आया। प्रश्न नंबर 10, सुल्तान को देखकर खड़ग सिंह क्या सोचने लगा? लखो, सुल्तान को देखकर खड़ग सिंह सोचने लगा कि सुल्तान को देखकर खड़ग सिंह सोचने लगा कि भाग्य की बात है, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? तो चालो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे पाठ 7 हार की जीत पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 हूँ आपने अहींया लखावी चूकी छूँ। हवे आशा राखुं छुं कि आप पण आ खूब ज सारी रीते मारी साथे लखी चूक्या छो। जय मामादेव।